बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic is pillars of Islam. So we have completed articles of faith recently, and articles of faith were related to the beliefs. जब हम बिलीफ की बात करते हैं ना, तब हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ की बात करते हैं, ठीक है। जब हम कुरान के अंदर भी देखते हैं युमिनूना बिल गैब, कुरान के अंदर अल्लाह ताला सूरह बकरा में कह रहा है युमिनूना बिल गैब, अनसीन बिलीफ, दे हैव अनसीन बिलीफ। तो अल्लाह ताला बेसिकली हम बिलीवर्स यानी मुसलमानों के बारे में ही बात कर रहा है कि वी हैव अनसीन बिलीफ। बिलीफ्स का ताल्लुक जो है इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट। व्हेन इट कम्स टू द पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, अगर हम सीआईई में देखते हैं या आईजीसीएसई में, तो इन आर्टिकल्स ऑफ फेथ देयर आर नो वेरिएंट्स। आर्टिकल्स ऑफ फेथ के वेरिएंट्स नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। इफ दे आर आस्किंग फॉर द तौहीद, यूनिटी एंड द वननेस ऑफ अल्लाह, or to believe in prophets or angels or any of the article of faith, there would be a straight question, no variant. But remember one thing, except shahada, in all four pillars of Islam there are multiple variants, especially salah and hajj. ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स मिलेंगे। सलाह में तो आपको कम से कम मिनिमम यू विल गेट 15 to 16 वेरिएंट्स, क्योंकि देयर आर स्मॉल टॉपिक्स आल्सो, like, and there are big topics also on which the separate questions of 10 marks are coming. So let's start with the first pillar of Islam, that is shahada. As I told you, in articles of faith there was a one reference which was common in all the articles of faith. Same goes to pillars of Islam. In all the pillars of Islam there is one reference which is common in all the five pillars of Islam. For example, Hadith Jibrail. I have told you Hadith Jibrail in detail. This is the hadith which is related to the companions, कि जब companions ने questions पूछना छोड़ दिए थे Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से after the verses of Surah Al-Hujurat, and companions were scared to ask the questions from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, considering it the disrespect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or maybe Prophet sallallahu alaihi wasallam would get annoyed. इस चीज़ को देखते हुए कंपेनियंस ने जो काम के क्वेश्चन थे वो भी नहीं पूछते थे। So Allah Ta'ala sent Hazrat Jibreel alayhi salam to help the Muslims. There were four questions in Hadith Jibreel. The first question was, what is Islam? Right? So in the answer of Islam, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Islam is to declare Shahada, that Allah is one and only and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. Then establish the prayer, keep fast, pay zakat, and perform the Hajj. So these five pillars of Islam were mentioned in Hadith Jibrail by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the answer of Islam. Right now our topic is pillars of Islam. That is why we will mention only the part of Hadith Jibrail in which the pillars of Islam are mentioned, and this can be the common reference for all your five pillars of Islam. Right? So let's start with Shahada. What is the meaning of Shahada basically? Shahada is the name of declaration, right? When you say Shahada, what comes in your mind? The first thing which comes in your mind, of course, it is one for the first pillar of Islam, not one. It is the first pillar of Islam. I hope you can see my board also, because in this way you can prepare your notes too. It is the first pillar of Islam. Second thing which comes in mind is it is one of the worship of Islam, because अगर हम शहादा में और कुछ भी नहीं करते, ओनली वी आर रिसाइटिंग इट, वी विल गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो शहादा को डिक्लेयर करते रहना भी, बार बार उसको जबान से इकरार करते रहना भी, दिस इज ऑल्सो यू विल ऑल्सो गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट। नाउ व्हेन वी कम टू द अदर पार्ट, तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, दिस इज द फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी रिटन द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम एंड वर्शिप। देन नेक्स्ट थिंग इज Shahada is one more thing which comes in our mind, that is Shahada is basically the minimum requirement
of Islam. Means when you are entering into the fold of Islam, this is the first thing which you have to declare. So this is the minimum requirement uh, to be considered as a Muslim. मुसलमान होने के लिए जो minimum qualification हमें चाहिए, that is शहादा. ठीक है. Next is, this is the gate to enter into the fold of Islam. The gate to enter into the fold of Islam. बगैर शहादा की डिक्लेरेशन के आप इस्लाम के अंदर एंटर नहीं हो सकते. राइट. इस्लाम के अंदर एंटर होने के लिए आपको हर हाल में शहादा को डिक्लेयर करना होगा. नेक्स्ट इज as components of shahada. Now we will talk about this is the basic difference of shahada and tawheed, because sometimes they ask you the question that what is in B part usually, that what is the difference between shahada and tawheed. Shahada has only one. Shahada has two components. On other hand, if you will see tawheed has two components. तो सॉरी वन कंपोनेंट. तौहीद का एक कंपोनेंट है यानी ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट इज देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. जबकि शहादा के दो कंपोनेंट हैं. Declaration of faith that Allah is one and only, and the declaration of this truth that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. अब अगर हम इसको देखते हैं कि शहादा के अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है जो डिफरेंस आता है तौहीद और शहादा का. तौहीद इज द बिलीफ एंड शहादा इज द डिक्लेरेशन. जबान से इकरार करना ज़रूरी है. ठीक है. तो आते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ शहादा के ऊपर. कंपोनेंट्स ऑफ shahada. There are two components of shahada. Number one is, the first component is declaration of the unity and oneness of Allah, and second is, we can add on the plus sign here, and we write the declaration of the prophethood of Prophet sallallahu alaihi wasallam. और भी खोलो. And the second component of shahada is the declaration of prophethood of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right? I am not writing sallallahu alaihi wasallam, but I am saying it, so you can also write it and you can say it too. Next is, you can write the reference of Hadith Jibreel also. In Hadith Jibreel, when Hazrat Jibreel asked a question from Prophet sallallahu alaihi wasallam about Islam, about Islam, he answered, you can write it in inverted commas and it would become a complete reference. Islam is to bear witness that Allah is one and Prophet Muhammad is his messenger. Make sure beta whenever you will use H like his, him for Allah,
always, or he always use the capital letter, right? Because you cannot not refer his or him towards Allah except writing capital letter. Now write down the detail of Shahada. The words of Shahada are few, but they are extremely significant, because this is not only an impression, but this is also a threshold, and this is making someone a Muslim. So this is not something small, extremely significant. And with this declaration, we are compiling beta proper 10 marks answer. I hope you all are taking the notes. And with this declaration, a person acknowledges acknowledges Allah as the creator. Always write capital C for Allah when you are writing creator for Allah. Creator and sustainer. In Islamiyat, you know what is the most important thing? Subject language. When you will be writing in this way, examiner will understand that your subject language is strong and you are good to go. You are able to write the proper Islamic phrases in proper way. So make sure कि जब भी आप इस्लामियात में इस तरह की चीज़ें लिखें, आप ऐसे नहीं लिख रहे बेटा. इस्लामियात का आंसर डिफरेंट होता है एक ऐसे लिखने से. So always use the proper subject language terminologies, and also take care of the capital and small letters too. And the sustainer of all, and affirms. इस आंसर के बाद आपको कहीं किसी के नोट्स में झांकने की या कोई बुक में से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This answer will be enough inshallah for your 10 marks question. And affirms the prophethood of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is also a step from disbelief and ignorance to knowledge, light, and guidance. They, these things are opposite of each other, right? Muslims, when whether they are born into the faith or accept Islam later in life by reciting Shahada, become a part of the Ummah, bonded
together by their common faith, irrespective of race और बैकग्राउंड। देखो बेटा, यही तो ब्यूटी है इस्लाम की, इसी को हम कहते हैं इस्लाम। इस्लाम जब हम हमेशा बात करते हैं कि इस्लाम गिव्स द लेसन ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, तो उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे पहले हमें नजर आता है किसमें, व्हेन वी डिक्लेयर शहादा। फिर रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रेस, कलर और बैकग्राउंड, we all are equal in the sight of Allah. When we are equal in the sight of Allah, so what is the discrimination between me and you? फिर तुम्हारी मेरी कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, जब अल्लाह की नज़र में हम एक बराबर हो गए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको डिक्लेयर किया था इन ड्यूरिंग हिज फेयरवेल सरमन, दैट ऑल द मुस्लिम्स आर इक्वल and none of you would have the priority upon other, but one thing which is the level of which is the higher level of the humanity, that is taqwa. अगर कोई इंसान किसी इंसान से बेहतर है तो वो सिर्फ तकवा की वजह से, और देयर इज नो अदर रीजन कि कोई किसी से बेहतर, राइट। सो शहादा लाइक क्लैरिफाइज ऑल दीज डाउट्स टू, कि जब हम मुसलमान हो जाते हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ शहादा, देन वी ऑल आर इक्वल, फिर बात ही खत्म होगी। नाउ नेक्स्ट इज मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू ट्रूली commit the shahada, commit to the shahada, need to believe in the 7 aspects given below। अच्छा, अब आते हैं बेटा हम 7 एस्पेक्ट्स के ऊपर। जो शहादा के 7 एस्पेक्ट्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब मैंने तौहीद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था तौहीद का कंपोनेंट ही एक है, ठीक है, यूनिटी एंड द वननेस ऑफ अल्लाह, बात खत्म। उसके मैंने आपको 4 एस्पेक्ट्स बताए थे। अल्लाह इज वन एंड ओनली इन हिज एग्जिस्टेंस, अल्लाह इज वन एंड ओनली इन हिज वर्शिप, अल्लाह इज वन एंड ओनली इन हिज लॉर्डशिप, यानी अथॉरिटी एंड पावर, एंड ही इज वन एंड ओनली इन हिज एट्रीब्यूट्स। वो बिल्कुल अलग चीज़ थी, वो तौहीद के एस्पेक्ट थे। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ शहादा। यहाँ जो हम शहादा के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आर्टिकल्स ऑफ फेथ में हम हमेशा हम ईमान मुफस्सिल के साथ एक और ईमान मुजमिल पढ़ते हैं। आप लोगों से सुना भी था मैंने उस दिन, somebody recited it too for me, and that was आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। बस इसको इतना समझ दें कि तस्दीकुम बिल क़ल्ब यानी टू बिलीव इन हार्ट, दिस इज आर्टिकल्स ऑफ फेथ, यानी दिल से तस्दीक करने का नाम, टेस्टिफाई करने का नाम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, ठीक है। और इकरार बिल लिसान इज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज द पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो ये दोनों ईमान मुजमल के अंदर आ गए, ठीक है। फिर ईमान मुफस्सिल उसको और भी डिटेल में बता रहा है आर्टिकल्स ऑफ फेथ को। तो पहला हमारे पास जो शहादा का एस्पेक्ट है, दैट इज नॉलेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज वॉट एवर यू आर सेइंग। देखो, without knowledge if we are accepting shahada, that would not be acceptable at all। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। when we are saying that it is extremely important to have knowledge what we are saying, what we are declaring, for what thing we are bearing witness। हम किस चीज के लिए विटनेस बेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट ऑलवेज से आई लव यू या रसूल अल्लाह, आई लव यू अल्लाह, this is not enough। when we are accepting them, Allah says multiple time in the Quran, atiullah wa atiur rasul, like obey Allah and obey his messenger। तो knowledge का मतलब ये है कि when we are bearing witness
that Allah is the one and only and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his messenger. It means now we have the complete knowledge that what we are saying, and after declaration of this faith, what we are supposed to do, what are the requirements of this statement. ये statement out of habit या out of जो है वो आप ऐसे ही randomly नहीं कह सकते. You should be very particular when you are saying it. Believer should know the meaning, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को जानना और उनकी बातों पर अमल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शहादा को जबान से डिक्लेयर करना. और ऑफ स्टेटमेंट. Knowledge is the knowledge of the requirements means आपके पास शहादा की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. of the requirements of shahada means the fulfillment of Allah's commands and the commands of his messenger. ये बहुत ज़रूरी है. हमें पता है कि जब हमने शहादा को डिक्लेयर कर दिया, अब अल्लाह और उसके रसूल की हर बात हमको माननी है. जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया, खुद अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है, इसके लिए हम रेफरेंस भी लिख सकते हैं. अल्लाह सेज इन कुरान, व्हाटएवर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वुड गिव यू, टेक इट, एंड फ्रॉम व्हाटएवर ही वुड अब्सटेन यू, स्टॉप इट. अल्लाह सेज, ये आपका रेफरेंस बन जाएगा इन कुरान, whatever the messenger of Allah will give you, take it, and from whatever he will refrain you, stop from it. जो अल्लाह का मैसेंजर तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके रुक जाओ. एंड एक और चीज़ कि जब हम शहादा डिक्लेयर करते हैं तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि शहादा डिक्लेयर करने के बाद हमें बाकी के जो 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं उनको भी प्रॉपर फुलफिल करना है. तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ऑल अदर 4 pillars of Islam and considering halal as halal and haram as haram is also important. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि शहादा में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शहादा डिक्लेयर की तो आप हलाल को हलाल समझने का भी आपको पता होना चाहिए, हराम को हराम समझने का भी, और बाकी के 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम फॉलो करने का भी. इसके अंदर आप चाहें तो इस हदीस को भी मेंशन कर सकते हैं. वंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ द कंपेनियन, ही सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इफ आई वुड ऑफर सलाह, पे ज़कात, परफॉर्म हज, मतलब उन्होंने उससे चारों पिलर्स ऑफ इस्लाम को उन्होंने पूछा. एंड देन ही सेड दैट इफ आई वुड डू ऑल दीज 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड आई वुड कंसीडर हलाल इज हराम, हलाल इज हलाल एंड हराम इज हराम, वुड आई एंटर इनटू जन्नह. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यस. मतलब ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल एक वन वर्ड आंसर था कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल एंटर इनटू जन्नत. मतलब उन्होंने तो बहुत आसान तरीका बता दिया.
लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है कि हलाल को हलाल समझना और हराम को हराम समझना, ठीक है? तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रैंडमली उसको पता ही नहीं है तर्जुमा अरबिक में हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अगर कोई बोल देता है, तो इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज़ शहादा, वो शहादा कंसीडर ही नहीं होगी, क्योंकि शहादा के लिए आपको शहादा के वर्ड्स की मीनिंग पता होना भी ज़रूरी है और शहादा की फुली रिक्वायरमेंट्स का भी मालूम होना ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है एस्पेक्ट आपके पास सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, ठीक है? सर्टेनिटी क्या है? बेसिकली सर्टेनिटी इज द फेथ, यकीन किसी चीज को, यानी सर्टेनिटी इज द ऑपोजिट ऑफ डाउट। आपको पता है इस्लाम के अंदर डाउट करना वैसे भी मना है। इट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम टू लाइक कीप डाउट्स इन योर माइंड। और आपको पता है कि शैतान का पसंदीदा काम यही है। सेटन इज ऑलवेज स्टरिंग इवल थॉट्स इन योर माइंड, और उसका काम ही क्या है? आपके दिलों में वसवसे डालना, आपके दिल में डाउट्स डालना। जब इंसान डाउट्स में आ जाता है, वो हमेशा जो है वो चीज़ों को खराब करना शुरू कर देता है, क्योंकि शैतान उसको, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, शैतान उसके दिल में वसवसा डाल रहा है, मैंने 2 रकात पढ़ी, मैंने 1 पढ़ी, मैंने 2 सजदे किए, मैंने 1 किए, एंड दीज़ आर वेरी कॉमन डाउट्स व्हिच वी यूजुअली फील। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे एंड वी विल कंटिन्यूअसली फॉलो द Satan, what would happen that we would be distracted from the prayer, और वही तो वो चाहता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि वी शुड बी सर्टेन। हमें, हमारे लिए सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको मेंशन करेंगे, इट इज द ऑपोजिट ऑफ डाउट, which in Islam equivalent, which in Islam is equivalent equivalent of equivalent to डिसबिलीफ। मतलब डाउट्स इतने इस्लाम के अंदर मना है, इस्लाम के अंदर प्रोहिबिशन इतनी ज्यादा है डाउट्स की कि वो इक्विवेलेंट टू डिसबिलीफ हैं, डिसबिलीफ के जैसे हैं। मतलब जिस तरह से आपके दिल में अगर डाउट्स हैं, तो मतलब आपको, इसका मतलब है कि आप डिसबिलीव कर रहे हैं, आपका ईमान नहीं है। और डिसबिलीफ को हम अरबिक में कहते हैं कुफर। तो डिसबिलीफ और कुफर एक जैसा हो गया, तो डाउट भी इसका मतलब है कुफर ही हुआ, ठीक है? सो वी हैव टू बी केयरफुल। मुस्लिम्स therefore should be certain in their heart hearts of the truth, truth of shahada, with both components। दोनों components में आपका यकीन जरूरी है। with both components। इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल भी आपको पता है कंप्लीट रेफरेंस होती है। अगर आप किसी कंपेनियन को रेफर करके कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, इट बिकम्स योर कंप्लीट रेफरेंस। इसका आपके पास रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है कि हजरत अबू सुफियान, in at the time of the conquest of Makkah, when he entered into the fold of Islam, in the beginning he recited only one component of Shahada, because he had a doubt in his heart for the other component of Shahada, means Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. But Prophet sallallahu alaihi wasallam did not force him. He allowed him, he granted him permission to ponder about it more, एंड उनको कहा कि जब तक आप कन्विंस नहीं होते, आप ना करें दूसरे पार्ट को डिक्लेयर। और जब अबू सुफियान खुद ब खुद उनके हार्ट के अंदर ये चीज़ इंटैक्ट हो गई और वो कन्विंस हो गए, देन ही रिसाइटेड द अदर पार्ट ऑफ द कलमा आल्सो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि आपके हार्ट के अंदर सर्टेनिटी हो, तो ही आप फेथ को डिक्लेयर करें, अदरवाइज डिक्लेरेशन ऑफ द फेथ इज यूजलेस। वरना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सुफियान से कह सकते थे कि आप अभी डिक्लेयर करने, बाद में सोचिएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट फोर्स हिम, he gave him time to think about it, to ponder about it. For example,
when Abu Sufyan was accepting Islam at the time of conquest of Makkah, conquest of Makkah, he recited he recited only one component of Shahada, but Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam granted him time to be convinced by heart, convinced with certainty. We will use the same word बेटा जो हमारे पास है तो हम उसको यूज करेंगे it would beautify आराम से right convince with certainty and he later after being certain declare the other component too, right? Now next is after certainty, third aspect is acceptance. Acceptance is very important, but because when you are accepting Islam after the declaration of Shahada, you are actually accepting everything which is Islam giving you. You are taking it, and whatever Islam is stopping you, you are stopping from it. This means this means Muslims will accept all the implications of Islam. मतलब फिर आप अपनी खुशी गम को नहीं देखेंगे कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, इट डज नॉट मैटर। इस्लाम ने अगर किसी चीज़ को इम्प्लाई कर दिया तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, इस्लाम किसी चीज़ से मना कर रहा है तो आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल बिलीविंग कंप्लीटली in whatever is stated in the Quran or stated by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam without choosing or rejecting anything given therein। उन कुरान और हदीस के अंदर जो भी चीज़ है आपने उसको हमने उसको एक्सेप्ट करना है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, चाहे वो हमारी समझ में आती है या नहीं आती, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके रसूल ने हुक्म दिया, बात खत्म। इसकी एग्जांपल है बहुत सारी चीज़ें हमें दुनिया में पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, यही तो शहादा है, यही तो शहादा की डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल हज़रत उमर did not like the terms and the conditions of Treaty of Hudaybiyah. Treaty of Hudaybiyah, but for the sake of Allah and His Messenger, he accepted it. That was the greatest example of acceptance.
Next is number 4, submission. Submission. What is submission? Submission mean submitting your will into the will of Allah, regardless of your happiness or not. Only the happiness of Allah and His Messenger should be the priority of the Muslims. So submission means shahada implies submission, submission to Allah, Allah's commands by one's actions. In fact, this is the meaning of the word इस्लाम. इस्लाम की पता है आपको मीनिंग ही क्या है? हमें हम कभी कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं इस्लाम का मतलब है पीस. इस्लाम का मतलब एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम करें तो पीस नहीं है. इस्लाम का मतलब ही क्या है? सबमिशन. यानी अपने आप को अल्लाह की रजा में राजी कर देना, कन्फेस कर देना और अपने आप को सबमिट कर देना अल्लाह की विल के आगे. यही तो है इस्लाम itself. The submission to the will of Allah. इसमें भी हजरत उमर की एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छी है कि हजरत उमर वाज ए हैबिचुअल ड्रिंकर. मतलब वो ना हतीम में बैठकर जो है वो वाइन पिया करते थे सबके साथ मिलकर. एज सून एज ही एक्सेप्टेड इस्लाम, तो उन्होंने खुद ही इस चीज़ को छोड़ दिया. जबकि देखने वाली बात है कि अगर कोई इंसान सिगरेट भी पीता हो तो वो उसको भी नहीं छोड़ पाता, बिकॉज इट इज़ एडिक्शन. चाय पीने वाले चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन हजरत उमर एज सून एज ही एंटर्ड इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, जबकि शराब की हुर्मत तो 4 AH में आई है, यानी 4th ईयर आफ्टर हिजरा में. उससे पहले सिर्फ ये वर्सेस आई थी, ला तकरबुस सलाता व अंतुम सुकारा, डू नॉट गो नियर टू द प्रेयर व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड. लेकिन हजरत उमर ने इतनी हैबिचुअल ड्रिंकर होने के बावजूद ही लेफ्ट द अल्कोहल देन एंड देयर. दैट वाज हिज सबमिशन टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट एग्जांपल है. यहाँ हम उनकी एग्जांपल लिख सकते हैं. हजरत उमर Hazrat Umar's example as he left wine when he अभी हराम भी नहीं हुई थी शराब. हराम तो शराब हुई थी इन 4th AH में इन इस्लाम. नेक्स्ट है नंबर 5, सिंसेरिटी. व्हाट इज नाउ सिंसियरिटी? से आपकी देखें, आप आपके सिलेबस की नंबर 1 हदीस है रिलीजन है सिंसियरिटी. मतलब इस्लाम ऐसा रिलीजन है जो कि बेस ही सिंसियरिटी पे करता है. पूरी अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई है ऑन द नेम ऑफ सिंसियरिटी, सूरह इखलास. सो सिंसियरिटी इज द कोर ऑफ द रिलीजन. तो शहादा इज अनएक्सेप्टेबल विदाउट सिंसियरिटी. जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, द होल सोल यू आर ओनली डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. कोई और इंटेंशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए. मीन्स to testify testify solely the faith in Allah and not for any other reason.
ये हमारा प्रॉपर एक 10 मार्क्स का आंसर डेवलप हो रहा है। अच्छी बात ये है कि शहादा के कोई वेरिएंट्स नहीं आते, शहादा से रिलेटेड कुछ भी आता है, यू आर ओपन टू राइट दिस आंसर। वन ऑफ द साइंस of being a Muslim for the sake of Allah is that a believer does whatever Allah asks, regardless what anyone else desires। जो कोई सोचता है सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन मकसद अल्लाह की रजा होती है। ठीक है, द फर्स्ट आप लिख सकते हैं एज ए रेफरेंस, द फर्स्ट हदीस of our syllabus is religion, ad-din wa nasiha is sincerity। It would become your complete reference। ठीक है, नंबर 6 लविंग, मतलब आप शहादा को अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो यू शुड डू इट आउट ऑफ लव, मतलब आपको आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। लविंग अल्लाह एंड हिज मैसेंजर is very important for the declaration। अगर आपको मोहब्बत ही नहीं है तो आपको हर काम बोझ लगेगा। तो वी आर नॉट सपोज टू टेक इट एज यू नो द बर्डन, वी आर सपोज टू टेक इट लाइक इन लव, विद लव वी आर सपोज टू एक्सेप्ट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए कोई काम करें, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए करें। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से कि नमाज अकुरत आयुनी फी सलाह, हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि नमाज इज़ बेसिकली लाइक अ बर्डन, और अल्लाह ताला से कोई एक अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि अल्लाह से कर्ज दिया हो, जैसे मुझे सही से याद नहीं है, बट इट इज़ लाइक दैट। तो नमाज हम ऐसे पढ़ते हैं कि बस काम खत्म करना हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ही यूज्ड टू से कुर्रत आयुनी फी सलाह, माई कूलनेस ऑफ माई आईज लाइज इन सलाह। तो इससे हमें पता चला कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ऑफर द प्रेयर विद लव। तो इसी तरह से बाकी कंपेनियंस, उनका लेवल ये होता था नमाज पढ़ने का, जैसे हमने उसमें पढ़ा था हदीस जिब्राइल में कि दे यूज्ड टू ऑफर द प्रेयर एज दे आर वॉचिंग अल्लाह, और ऐसा लगता था कि वो अल्लाह को देख रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे भी यही डिमांड की है कि अगर हम नमाज पढ़ें तो ऐसे पढ़ें जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन थिंक दैट अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल से हमें मोहब्बत हो जाए। और अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी को होना भी नहीं चाहिए हमारी हमारे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। नेक्स्ट इज सेवन एंड लास्ट एस्पेक्ट इज adherence। And what is adherence? To the Shahada Shahada is being true to Islam and its beliefs and fulfilling its all its obligations till डेथ। जो हमने मान लिया अब उस पर पाबंद रहना है। अडेरेंस का मतलब है पाबंदी करना, मतलब हमने जो मान लिया था, जिसको डिक्लेयर किया था, नाउ टिल आवर डेथ
वी विल बी बाउंड ऑन दैट, और इसके ऊपर बाउंड रहने को ये अडेरेंस कहते हैं। देखिए वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी बोर्न इन इस्लाम, मैं तुम हम सब, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है कि वी आर मुस्लिम्स बिकॉज वी आर बोर्न मुस्लिम्स। हाँ, ये ज़रूर अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह कि वी ऑल विल डाई ऑन इस्लाम। इस्लाम के ऊपर पैदा होना इज़ नॉट एन अचीवमेंट, बट डाइंग ऑन इस्लाम दिस इज़ एन अचीवमेंट। अल्लाह ताला, इसीलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।